start a business because of either a need or your technical skill. No matter what business you are into, वो start इसलिए होता है क्योंकि आपको कुछ आता था, आप कुछ बना सकते थे, आपको कुछ पता था. But business grow or sustain तो लोगों से होता. After a certain point, it's all people business. The largest business owners in the world are great people managers. कोई और तरीका ही नहीं, because आप सब कुछ नहीं कर सकते हो. You'll have to recruit the best. You'll have to recruit okayish people. You'll have to recruit, empower them, allow them and make them work with each other. And before that, make them work with you. You'll have to gain the trust of those people. And then of course, keep delivering on that trust. So at the end of the day, business koi bhi ho, wo people business hai. For founders, as a founder, if you feel that you're bad at or you're not so good at people management, or you're not so good at emoting, talking, or you're not great at putting your emotions in perspective, you're not great at understanding people or making them understand your point. If you struggle with that, right, I think for you it is very, very important that you care for it today, no matter at what stage in your journey you are. Because इसका ये अपने आप ही सॉल्व नहीं होएगा. आप अच्छे लोग हायर करके खुद की पीपल मैनेजमेंट कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे. The problem that I see everywhere is that I think these are some of those skills जिनको बहुत ही everybody underrates them, and underrates them to the extent that they believe कि communication तो आ जाएगी, people management तो मैं धीरे धीरे सीख ही जाऊंगा, ये तो मैं कर ही लूंगी. बट मेरे हिसाब से एज अ फाउंडर यू शुड इन्वेस्ट इन कोचिंग, यू शुड इन्वेस्ट इन कोचेस. दुनिया में हर हाई परफॉर्मर हैज अ कोच. प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज कि क्रिकेट टीम में 11 लोगों के 11 कोचेस हैं, और फिर उसके ऊपर एक क्रिकेट टीम का कोच भी है. पर आप गली क्रिकेट खेलने वाले किसी से पूछो क्या भाई तेरी कोचिंग करा दें, तो जवाब देगा कि बाप को मत सिखा, मुझे सिखाओगे तुम क्रिकेट, बचपन से खेल रहा हूं. बट विराट कोहली को कोच चाहिए, और ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में. हाई परफॉर्मर्स हैव अ कोच, ओलंपियंस हैव अ कोच. क्या भागना सिखा रहा है, क्या लॉन्ग जंप सिखा रहा है किसी को, क्या कोच क्या सिखा रहा होगा. सम ऑफ दीज स्किल्स are supposed to be, you need to get coaching for it. Life teaches you everything, but life teaches you things in a very brutal way. Life के lessons जो हैं वो प्यार से नहीं मिलते हैं, वो बहुत जूते खा के, बहुत घिस के, बहुत पेन के साथ मिलते हैं. वो आपको वैसे भी गुजरना पड़ेगा, but a formal training can actually lessen the pain and increase the output. Problem is कि हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. हम और इस मिथ को एक्चुअली प्रमोट कौन करता है मालूम? इस मिथ को प्रमोशन मिलता है कि जब आप एक अच्छे ओरेटर को देखते हो तो आप ये समझने की बजाय कि इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या था, ये यहां तक कैसे पहुंचा या पहुंची, आप बोलते हो ये तो गिफ्टेड है, आप बोलते हो ये तो लकी है, आप बोलते हो कि इसको तो बोलना आता है. पर वो कैसे आया पता तो करो. हो सकता है कि आपको पता लगे कि वो बचपन से डिबेट कर रहा, फेयर. पर अगर आप ये पता करोगे कि वो बचपन से डिबेट कर रहा है तो आपको ये तो समझ आएगा कि 1000 hours of debate has gone into this. What does that mean? That means that probably 1000 hours of debate will also land you in the same spot. And that's a great news. So I think as a founder, it's even more important. This is important for everyone in general. But as a founder, you should invest in yourself, and you should invest in yourself proactively. You should figure out how to gain skills. You should figure out how to be better at things that you're good at. You should definitely improve things you're not good at. You should just not
wing anything out. You should never say कि हाँ ये तो सीख जाएंगे, कर करके सीख लेंगे. अगर मजबूरी है तो कोई बात नहीं, पर you should continuously invest in communication skills. You should invest in leadership coaches. You should invest your time with people who can also teach you. For me, one of the major hack that I've always, I think, with time I've just sharpened it, is that I spend time with smart people, and I go extra miles for that. I do anything and everything to spend time with good people. I spend time with people who nourish me or who I can nourish, because in both ways my skills, they sharpen. मेरे को अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन के लिए या अपनी प्रॉब्लम से डील करने के लिए आइडियाज सोचने की मसल पावर दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से आती है. क्योंकि एक्चुअली वो मसल पावर तो क्रिएटिव थिंकिंग है ना, कि एक प्रॉब्लम है, अब इसका क्या सोल्यूशन होगा. मैं पूरा दिन अगर यही काम करता रहूंगा, आई विल बिकम डेफिनेटली गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. एंड वो सिर्फ मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व करेगा, वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. पर्सनल लाइफ से एक छोटी सी स्टोरी है. सो मी एंड साक्षी वर इन कॉलेज टुगेदर, एंड साक्षी टॉपर थी. आई वॉज बेसिकली जस्ट विंगिंग इट. मैं कॉलेज ही नहीं जाता था. आई स्टार्टेड माई फर्स्ट स्टार्ट वाइल इन कॉलेज. तो मैं सिर्फ किसी तरह से अटेंडेंस पूरी कर रहा था और एग्जाम दे रहा था टू पास टू द नेक्स्ट लेवल. तो मैं कॉलेज पहुंचता था सुबह सुबह एग्जाम वाले दिन, एंड साक्षी रेडी बैठी होती थी नोट्स के साथ, क्योंकि उसका एजेंडा था कि मैं पास हो जाऊं. तो मैं बैठता था, एंड साक्षी एग्जाम से 2.5-3 घंटे पहले मुझे पढ़ाती थी. अब जब डिस्कोर्स चल ही रहा है तो बहती गंगा में बहुत सारे लोग हाथ धोते थे. तो एक्चुअली रोज सुबह जब भी एग्जाम्स होते थे, कैंटीन में जिस टेबल पे मैं और साक्षी बैठे हैं वहाँ पे भीड़ लग जाती थी. एंड भीड़ मीन्स लाइक 17-18 फोक्स लिटरली फाइंडिंग. कान भी है, दिख रहा है कुछ, तो वो सब सुन रहे हैं. एंड साक्षी फोकस सिर्फ मुझे पढ़ा रही होती थी. शी वाज आल्सो आंसरिंग क्वेश्चंस फॉर अदर्स. वन डे अनदर एस्पिरेंट टॉपर गर्ल in our class, she actually pulled Sakshi aside and asked her कि ये तू अपना इतना टाइम क्यों वेस्ट करती है. मैं समझती हूँ कि तेरे को आशीष को पढ़ाना है, बट इसको बोला कर थोड़ा खुद पढ़ के आया करे, और ये आसपास के लोगों को क्यों पढ़ाती है तू इतना. तो साक्षी ने उसे बोला कि आई मीन बट अगर नहीं पढ़ाऊंगी तो फिर उसे फायदा क्या होगा. उसने बोला तो तू अपना रिवीजन कर पाएगी. तो साक्षी ने एक्चुअली उसको जवाब दिया कि तेरे को ना आइडिया नहीं है, बट इनको पढ़ाने के चक्कर में मेरी रिवीजन 3 बार हो जाती है. एंड दैट इज व्हाई आई स्कोर मोर देन यू ईच टाइम. माई रिकमेंडेशन टू यू इज दैट यू शुड ऑल्सो अडॉप्ट 4-5 पीपल एंड स्टार्ट टीचिंग देम. एंड विच इज एक्चुअली ट्रू. दुनिया में इससे बेहतर कोई तरीका ही नहीं है. सो एक तरीका ही है that you spend time with people, but you also seek help in areas that you don't know. But for soft skills, for people management, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये समय के साथ खुद ब खुद आ जाएगा, तो ये मुझे वैसा वाला साउंड कर रहा है जैसे वो हिंदुस्तानी परिवारों में एक एडवाइस दी जाती है ना, कि लड़का बहुत बिगड़ गया है तो लोग कहते हैं शादी करा दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो सुधर जाएगा. फिर वो कहते हैं कि फैमिली प्लान कर लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो सुधर जाओगे. कितने लोग दिखे आपने जो सुधर गए. दिस इज नॉट द राइट मोस्ट वे. द राइट मोस्ट वे इज टू सीक प्रोफेशनल हेल्प और टू सीक प्रोफेशनल पाथ to get that skill, to polish that skill. There are people in the world who are continuously doing that. My view is that in India, we are still lagging a lot behind. In the US, you can almost call it a fad, but you will find a coach for the most bizarre problems. There is a coach for that. If you find search terms, it'll just blow your mind, right? Of course, that market has gone really, really deep in that. But it kind of makes sense because people want to achieve something. They don't have time. They want to conserve their shots. They don't want to lose because they tried wrong. They can spend money for it.
and they, look for the best. I can tell you that, I met somebody in US 10 years back who basically told me and I heard that for the first time, said, oh, I'm writing a book. I was like, oh, wow, that is so awesome. Someday I'll write a book as well. He said, yeah, but my book writing coach, is making me do that. I said, you have a book writing coach? This was 10 years back. Today, it totally makes sense. You should have a book writing coach if you're planning to write a book, because writing a book is difficult. Promoting a book is impossible. And when you go into that kind of coaching program, you realize कि ये सिर्फ book लिखना problem नहीं है. Audience कौन है, किसके लिए लिखी जाएगी, कौन पढ़ेगा, वो कहाँ पे shopping करता है, how will they discover you, is the market large enough, who is the right publisher for you. They set you up for at least no failure. Success is relative, but आपका failure बहुत reduce हो सकता है. So, as a founder, be even more, sensitive about it. You can't pour from an empty cup. आप अपनी टीम में लोगों को बेहतर बनाना चाहते हैं, बट अगर आप खुद में बेहतरी के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको लोगों में उनकी ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करने का आइडिया कभी आएगा ही नहीं. पर अगर आपने खुद पे 50,000 रुपये खर्चे और उससे आपकी जिंदगी में एक भी एक्स्ट्रा स्किल ऐड हुई या शार्पन हुई, योर बायस टू इन्वेस्ट इन योर टीम्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट विल गो थ्रू द रूफ. लाइक नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप यू. आई होप ये आंसर, ये ओपिनियन, ये थॉट आपको रिलेटेबल लगा होगा, या हो सकता है ना भी लगा हो. आई वुड वॉन्ट टू नो योर रिएक्शन इन कॉमेंट्स. अगर इस आंसर के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं या कुछ सवाल हैं, या इस थॉट को आप चाहते हो दैट आई एक्सपैंड इट इन एनी वे, हाउ यू फील अबाउट दिस, लीविंग अ कॉमेंट फॉर मी is going to be the fuel to make the next one. Thank you.